नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ ऑन नेशन नाउ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so the thing gets curiouser and curiouser, so to speak. This is the case of the dog, right? Yes, sir. There's a memorial to a dog built by the Holkars Yes, sir, बिल्कुल। that sacrificed itself on the funeral pyre of Sambhaji Maharaj. Now, शिवाजी महाराज, I think। Sambhaji Maharaj, Okay, or is it? okay. Or is it Shivaji Shivaji Maharaj? Shivaji Maharaj. But I think Sambhaji Maharaj, right? Okay, okay. Because the Sambhaji Brigade which is protesting, right? Yeah. So, anyways, it's either Shivaji Maharaj or Sambhaji Maharaj. I'm not so sure. I'll just check. So what is going on over here? Because Sambhaji Raje says that there is no reference in history to any such event, and the Sambhaji Brigade says that is Sambhaji That is all Brigade. history only. They say that the dog is right, Wagya is there, Wagya Yes. is a part of history. Yes. Sambhaji Raje is wrong. Sambhaji Raje is wrong. That is Yes. what Bhide says. Now, because Bhide Guruji has said it, so everybody has jumped into it. Yeah. They believe Bhide to be the voice of the BJP or the voice of Prime Minister Modi or Devendra Fadnavis. So, once Bhide ji comes in the picture, everybody else, you got Jitendra Award in, you got the Congress in, you got everybody in saying, now this is a controversy. They say the Wagya statue has to go. That's what they claim. It was built in 1936. He had jumped, clarification, into Chhatrapati Shivaji Maharaj's Yes. funeral pyre at Raigad in Built in 1936. Chhatrapati Shivaji Maharaj died around 1680. Now, ultimatum has been given by Sambhaji Brigade that 31st May तक आप अगर इसको नहीं हटाएंगे तो हम उसको हटाएंगे जी। और 31st May is Ahilya Bai Holkar's birthday too. So now it's a Maratha versus OBC. That is some people who claim to see a bigger picture into what is happening here. So Wagya, the statue, is a problem. Isn't a problem. Yes. It is the Marathas versus OBC, which the people would like to say it, because the person who has raised it is Sambhaji Raje. He is an MP also of Sambhaji Brigade. And the local Dangar community says that they are being attacked. It is not actually an attack on the dog. It is actually an attack on them, because it is the Holkars who built that memorial. Tukaji Holkar, and probably he was a Dangar. He's from the Dangar community. That's right. So as a result of it, what they are saying is कि आज की तारीख में ये लोग वाग्या का जो स्मारक है वो जान करके हटाना चाहते हैं, because they want to show that we are not Marathas. So it's an attack on OBCs. Now what is really going on over here? At the moment, we are joined by two very, very distinguished guests indeed. Our dear old friend from the Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Hemant Kamble, is right now with us, as also Mr. Ganesh Khankar. Hemant Kamble sahab, namaskar. नमस्कार। Jai Hind, Jai Maharashtra. How are you, sir? Seeing you after a long जय time. हिंद, जय महाराष्ट्र। At least I am Absolutely seeing you fine। after a long time. We are seeing him in a lot of agitations now. कामले That's साहब right. को हम हर एजिटेशन में देख रहे हैं, हर हफ्ते में देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया एजिटेशन लेके लोगों के सामने जा रहे हैं। गणेश खानकर साहब नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही गणेश खानकर साहब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। मुझे आपकी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज अब आई है। Fantastic. It's absolutely So clear. हेमंत कामले साहब, could you clarify a little bit? लेकिन आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है सर। धीमी आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ बढ़ाने बोलिए। अरे भाई आवाज बढ़ाइए। आवाज बढ़ाइए। अरे आवाज बढ़ाइए भाई, क्या कर रहे हैं? अगर गणेश खानकर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंची तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मंत्री जी बनने वाले हैं, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो हमारी भविष्यवाणी हमें सुनने नहीं मिलेगा। फिलहाल जनता की आवाज उन तक पहुंचती नहीं है। हेमंत कामले साहब, तो ये वाग्या का क्या है, ये असलियत क्या है, ये इशू ऊपर अब क्यों आया है, काहे के लिए, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन हियर? हेमंत कामले साहब। नहीं, मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली अभी वाग्या क्यों बाहर आ रहा है, औरंगजेब की कब्र क्यों बाहर आ रही है, दिशा सालियन की केस क्यों बाहर आ रही है, प्रशांत कोरटकर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। देखिए हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में इतने सारे मुद्दे हैं। अब देखिए अभी मार्च चल रहा है, मार्च खत्म हो गया, अब पानी की किल्लत है पूरे महाराष्ट्र में, इस पर कोई बात नहीं करेगा। जी। यहाँ पर
देखिए, अब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस साल का बजट है 74,000 करोड़ जी। और यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल है, जैसे आपका भगवती है या मुलुंड का अग्रवाल हॉस्पिटल है, ये सब कहीं ना कहीं पीपीपी मॉडल पर देने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। तो ये सब बातें, ये बुनियादी जरूरत है और लोगों की हर मतलब रोजमर्रा जिंदगी में जिसकी जरूरत है, ऐसे मुद्दे हैं। और ये वाग्या जो है उसकी वहां पर जो मोन्यूमेंट बनाए, जो भी मोन्यूमेंट बनाए, उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये मुद्दे कहां से आते हैं और कौन लोग लेके आते हैं यहां पर? किसको इन मुद्दों पर ज्यादा इंटरेस्ट है? और जब अब देखिए महाराष्ट्र विधान सभा का जो अभी ये अधिवेशन हुआ, इसमें कितने मुद्दे पर हमने बात की। क्या बात हुई? औरंगजेब की कब्र, दिशा सालियन की केस, प्रशांत कोरटकर, पूरा हमारा जो सदन चला इन्हीं बातों पर चला। कितने मुद्दों पर महाराष्ट्र के यहां पर ऐसे डिसीजन हुए या निर्णय हो गए। तो कहीं ना कहीं हम अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके आगे से इनके बैटल फील्ड नहीं खेलेगी, हम लोग अपने बैटल फील्ड पर इनको लेके आएंगे। आज मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, इसका जो बात होनी चाहिए। और इतना बड़ा सदन, इतना बड़ा अधिवेशन होता है, उस पर ये मुद्दों पर बात होने के बजाय हम बात किस पर कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र जो 318 साल पहले। देखिए, मैंने एक आपको मैं एक जोक सुनाता हूं जी, जो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि किसी ने कहा कि भाई, अमेरिकन लोगों से कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्या है कि तुम्हें सुनीता विलियम्स को अवकाश से यहां पर लाने में 386 दिन लगे, हमने 2 दिन में औरंगजेब को ऊपर लेके आए। 318 साल के कब्र, 318 साल पहले जो कब्र में गाड़ा था उसको लेके आए और 2 दिन में हमने हमारा जब मतलब साधा तो उसको वापस भी भेज दिए। तो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है, मतलब इंडिया टेक्नोलॉजी में कितने आगे गया है कि 2 दिन में अमेरिका, ये औरंगजेब ऊपर भी आया और नीचे भी गया, लेकिन सुनीता विलियम को नीचे लाने के लिए 286 दिन लगे। हेमंत जी, सो वी आर फार अहेड। हेमंत जी, वी हैड औरंगजेब सेम नागपुर रॉयट्स, वहां डेमोलिशन देखे लोगों के, बहुत सारे सेडिशन केसेस सब पे डाल दिया। औरंगजेब के चाहने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है, फडणवीस साहब बोलते गए। अब ये सौगात है मोदी, एक तरफ बुलडोजर दिख रहा है, एक तरफ सौगात मोदी दिख रहा है। हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिक्स? इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 32 लाख बैग्स किट्स रमजान के जो मोदी साहब बांट रहे और यहां पर बुलडोजर भी चल रहे हैं नागपुर में, कैसे देखते हो आप कामरे साहब? नहीं, अब तो मैं खुलकर बोलता हूं कि ये साठगांठ है कहीं नहीं तो विपक्ष और सत्ताधारियों की। मोदी जी एक तरफ बात कर रहे हैं और यहां पर किट भी बांट रहे हैं। देखिए कैसे है ना कि औरंगजेब की कब्र कहां पर है? खुलताबाद में जी। और दंगा कहां पर होता है? नागपुर में। अब जिनको औरंगजेब को प्यार है, औरंगजेब से इतना प्यार है कि औरंगजेब कौन था, मतलब मुझे ऐसे कोई एक राजा बताइए हिंदुस्तान का जिसने जाके दूसरे मुल्कों पर आक्रमण किया, वहां पर अपनी जो रियासत है वो बढ़ाई। मराठाओं ने जो अटक में झंडा फहराया था ना, वो अटक तक उन्होंने भगाया था, जो अब्दाली और उनके सैनिकों को, उनके इनको, और वहां तक अपना झंडा फहरा था। वो वहां पर साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं गए थे, उन्होंने वहां पर उनको खदेड़ दिया था। तो ये औरंगजेब की जो औलादे अभी यहाँ पर जो औरंगजेब को बड़ाई कर रहे हैं या जो भी औरंगजेब को ऊपर लेके आ रहे हैं, और किसके फायदे के और किसके नुकसान के, वो बात तो अलग है। लोग जानते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने पर कहीं ना कहीं विपक्ष और राज्य जो सत्ताधारी उनकी साठगांठ हुआ। ऐसे मैं खुले आप पर बोलता हूं, क्योंकि औरंगजेब आता है, उसके बाद दिशा सालियन आते हैं, दिशा सालियन की जैसे केस आती है वैसे कुणाल कामरा आता है। चल क्या रहा है, मतलब अधिवेशन में कौन से मुद्दे पर बात हुई वो बताइए। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में देयर इज अनसीजनल रेन एवरीवेयर, देयर इज अनसीजनल रेन इन मराठवाड़ा, इन खानदेश, और वाटर शॉर्टेज है पूरा डिस्ट्रिक्ट में। आज की तारीख में बहुत बुरी तरह वाटर शॉर्टेज है। देयर इज वाटर शॉर्टेज एल्सवेयर आल्सो। आई वी वेलकम डॉक्टर सुधीर डोने एज वेल। सुधीर डोने साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर। तो ये it looks very strange. I'll come to Ganesh Khankar साहब after I've spoken to Dr. Sudhir Done of the Congress. Sudhir Done साहब, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभी वो वाग्या का मैटर आ गया, छत्रपति शिवाजी महाराज डॉग, उसकी मतलब उसका जो मॉन्यूमेंट है, कोई बोल रहे हैं हम उसको तोड़ने वाले हैं, the other side says we will not let you do it.
और जैसा अभी अभी हेमंत कामले साहब ने कहा, ये दिशा सालियान की मैटर एकदम उठ गया। उसके अलावा वो क्या औरंगजेब की खबर आ गई। मतलब ये क्या चल रहा है जनाब? डॉक्टर ढोने बताएं। ढोने साहब, योर फोन इज ऑन म्यूट सर, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। सर बोलिए कुछ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर योर फोन इज ऑन म्यूट। अब बोलिए कुछ, बोलिए सर ढोने साहब। गुड इवनिंग सर। हाँ अभी आवाज आ रही, अभी आवाज आ रही जी, बोलिए हाँ सर। ठीक है। नहीं ऐसा सर, अभी कांबळे साहब ने जो बोला वो हकीकत है कि ये सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, ये अपना जो अधिवेशन में जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए थी उस बात पे हुई नहीं, ये मुद्दे भटकाने का काम है। ये वैसे ही है। अभी जो संभाजी राजे जो है उन्होंने जो बोला है कि ये वाग्या की, ये हालांकि ये मुद्दा अभी बहुत पुराना है। इसके पहले भी संभाजी ब्रिगेड ने इस मुद्दे को बोला था कि ये जो कुत्ता है उसकी हाइट जो है वो शिवाजी महाराज से भी ज़्यादा बड़ी है। तो अभी देखिए जो इतिहासकार है, जितने भी इतिहासकार हैं जिन्होंने गलत इतिहास लिखा, शिवाजी महाराज का गलत इतिहास लिखा, संभाजी महाराज का भी गलत इतिहास लिखा, जिजा माता का इतिहास भी गलत लिखा, वही लोगों का ये काम है ये जो कुत्ते की जो स्टैचू है ये बनाने का। तो ये सब आइडियल है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। आप इनके खिलाफ बोलिए। जिन इतिहासकारों ने शिवाजी महाराज का, जिजा माता का, संभाजी महाराज का जो अपमान किया है, जो गलत इतिहास लिखा है, उनके बारे में जब आप बोलेंगे तो आरएसएस वाले, भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले ये रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके लोग हैं वो। अब मैं आपको बताऊं, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का इतिहास अगर किसी ने विकृत किया होगा और सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया होगा तो आरएसएस के जो प्रमुख है गोलवलकर, उन्होंने उनकी किताब में उनके बारे में गलत लिखा। संभाजी महाराज के बारे में गलत लिखा कि वो दारू पीते थे, वो अय्याश थे, इस तरह का लिया। शिवाजी महाराज के बारे में भी लिखा। इनके और प्रेरणा स्थान सावरकर ने तो यहाँ तक लिखा, उन्होंने 6 सोनेरी पाने लिखी कि 6 ये सुनहरे पन्ने हैं, उसमें शिवाजी महाराज उनको सुनहरे पन्ने नहीं दिखे। उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में लिखा कि ये शिवाजी महाराज का जो राज्य आया ये काकतालीय योग है, यानी कौवा बैठने का और डाली जो है टूटने का जैसा योग रहता है काकतालीय योग, वैसे ही वो अपने आप वैसे ही होने वाला था। इसमें शिवाजी महाराज का कोई शौर्य नहीं है। और शिवाजी महाराज ने गलत किया कि किसी की जो मुगलों की जो बहू थी उसको छोड़ दिया, ये शिवाजी महाराज ने बहुत गलत काम किया, इस तरह का सावरकर ने उनकी किताब में लिखा है। संभाजी महाराज को अय्यास बताने का काम इन्होंने किया है। तो आरएसएस के जो प्रेरणा स्थान है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरणा स्थान है, उन्होंने तो शिवाजी महाराज, जिजा माता, संभाजी महाराज, इनका सबका इतिहास का विकृतीकरण किया है। और ऐसे कई लोग हैं जो शिवाजी महाराज के खिलाफ लिखते हैं। ये सब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रातः स्मरणीय है, सुबह, यानी उनके लिए सम्माननीय लोग हैं। अब ये तो बहुत लिस्ट है, अभी तक बाबा साहब पुरंदरे तक क्या ये इतिहास है। तो ये इतिहास है। ये शिवाजी, अभी कोरटकर जो है, कोरटकर कौन है उसका फेसबुक चेक कीजिए। कोरटकर भाजपा का आदमी है, वो उसके सब फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, फडणवीस जी के साथ है, गडकरी जी के साथ है, नड्डा जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो राज्यपाल बने उनके साथ है, और अमित शाह के साथ है, सब उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। उसका फेसबुक आप प्रोफाइल चेक करेंगे, उनके विचार दिखेंगे आपको, भाजपा का आदमी है। राहुल सोलापुरकर का देखिए, उसके जो भाषण दिए राम मंदिर के बारे में और मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में उसके क्या विचार है, वो भी भाजपा का आदमी है। दोनों ने, सुनिए सर, ये दोनों ने अभी का इतिहास पुराना छोड़ दीजिए, अभी का
इन्होंने अभी भी शिवाजी महाराज का ये अपमान किया है, जिसा संभाजी महाराज का अपमान किया है। और भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये कहा गई, ये क्या बात कर रहे हैं? एक शब्द उन्होंने गोरटकर के बारे में, राहुल सोलापुरकर के बारे में बोला नहीं है। बट दोरे साहब क्या आपको लगता है ये ओबीसी वर्सेस मराठा फिर चालू हो गया? नहीं, ये बात मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जो लोग इसको कैसे एग्जामिन कर रहे हैं कि ये बनाने वाला 1936 में तुकोजी होलकर साहब ने फाइनेंस करके दिया था। और अभी जो इशू बार बार उठा है, बिकॉज फाइनेंस इज फ्रॉम द धनगर कम्युनिटी एंड 31 में जो अल्टीमेटम दिया है वो अहिल्या भाई होलकर का बर्थ एनिवर्सरी है। तो क्या ये इसीलिए हो रहा है कि क्लियर कट लोगों को जो पॉलिटिकल कमेंटेटर से देख रहा है कि ओबीसी वर्सेस मराठास का झगड़ा चालू हो गया वापस, बिकॉज बोलने वाले संभाजी ब्रिगेड से। नहीं, ऐसा है, आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ओबीसी के नेता अभी बने हुए हैं लोग, ये खुद की पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। उनको इतिहास जानना चाहिए कि ये जो शाहू महाराज का क्या इतिहास था। शाहू महाराज ने 1902 में अपने राज्य सरकार में उन्होंने बोला, अपने हमारे सरकार में, उनकी सरकार में उन्होंने बहुजनों के लिए 50% रिजर्वेशन दिया। जो 100% ब्राह्मण लोग थे, उनके जो काम करने वाले नौकरशाह जो थे, 100% ब्राह्मण लोग थे। उन्होंने बोला कि मेरे राज्य में अभी 50% रिजर्वेशन मैं देता हूँ बहुजनों को, ओबीसी को, बहुजनों को। और उन्होंने बोले कि कौन है बहुजन? जो ब्राह्मण नहीं वो बहुजन। और उन्होंने रिजर्वेशन दिया, नौकरी दिए। वही शाहू महाराज के वंशज है संभाजी राजे। हालांकि शिवाजी महाराज के वंशज और ये शाहू महाराज के वंशज, मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये शिवाजी महाराज और संभाजी जो शाहू महाराज के विचारों पे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। राइट, सो लेट्स गो टू लक्ष्मण सावजी साहब। सॉरी लेट्स गो टू गणेश खानकर साहब। आई एम सो सॉरी सर। सो गणेश खानकर साहब, आपने सुना हेमंत कामले साहब ऑफ द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और डॉक्टर सुधीर ढोने ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो गणेश खानकर साहब, क्या ये वास्तविकता है कि जान करके लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है स्पेसिफिक मुद्दों से? गणेश खानकर साहब, प्लीज गो अहेड। ऐसा है कि हमें इस चीज की कोई अभी तो फिलहाल आवश्यकता नहीं है जी। और राजीव जी सर, बोलिए सर। उनकी Ganesh Khankar Saab's frame is just frozen. I think there's a problem with his net. I think it was absolutely all right till now. I wonder what has happened. Ganesh Khankar Saab, can you hear us? उनकी बोलती बात हो गई सर। सर ऐसा नहीं। खानकर साहब फाइट करेंगे, धोने साहब आप देखिए। खानकर साहब आएंगे वापस, टेंशन मत लीजिए। लेकिन कामले साहब, हेमंत कामले साहब, but the fact is that we have been talking about this now for a long time. पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नंबर 2, क्रॉप मैनेजमेंट को लेकर के, हार्वेस्टिंग को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। सॉइल हेल्थ को लेकर के महाराष्ट्र में कोई बात नहीं कर रहा है। यू नो दी फर्टाइल सॉइल जो है महाराष्ट्र में 1 इंच से भी कम रह गया सर ऊपर जो लेवल है। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट दिस? What is the real reason? Why? Opposition में भी कोई बात नहीं कर रहा है। हेमंत कामले साहब जी, कैसे है ना कि हर किसी को यहाँ पर पावर चाहिए, लेकिन पावर आने के बाद क्या करना है इसका किसी के पास कोई प्लान नहीं है। फिर जब प्लान नहीं होता है, फिर 3 या 4 साल इनके वक्त गुजर जाता है, फिर इनको लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का जावई, लाड़का मुलगा, ये सब ऐसे स्कीम लेके आओ, फिर 1000-1500 में वोट खरीदो, ये सब चलता है। आपने जो बात कही एक क्रॉप मैनेजमेंट की, सेकेंड थिंग ये बात कही आपने, ड्रॉट एरिया जो बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, उसकी बात कही। अब देखिए मुंबई में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज मुंबई में हालत क्या है। देखिए मैं 3 दिन से घर पर हूँ, 3 दिन से मैं घर पर हूँ। मैं आपके डिबेट में भी आज मेरी तबियत ठीक, फिर भी आया हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए हूँ, आपके प्यार से। देखिए ये पोल्यूशन का जो है ना कि जहां पर देखो रोड खोदे हुए हैं जी। हर मुंबई का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर रोड की खुदाई नहीं चल रही है। तो किसी ने कुछ दिन पहले मुझे कोई एक रिटायर्ड डीसीपी मिले थे, तो उन्होंने कहा क्या है यार ये क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सिंधु संस्कृति में
हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो संस्कृतियों की हमने खोज की थी। अब मुंबई में जो 4 नदियां है, पोईसर, दहिसर, ओशिवरा और मिठी, तो हम हड़प संस्कृति के कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं। जितना माल मिले समेटो, जितने कॉन्ट्रैक्ट मिले ले लो, और उसमें से जो मलाई मिलती है उतनी खा लो, यही धारणा चल रही है। लाखों करोड़ों के टेंडर निकल रहे हैं, जो अच्छे रोड है उसको खोद रहे हैं, जो अच्छे फुटपाथ है उसको तोड़ रहे हैं। हर जगह पर जितनी मलाई है उतनी समेट लो, यही सब काम चल रहा है सत्ताधारी पार्टियों का। देखिए क्या है ना कि आपके पास सत्ता होती है, आपके पास कोई पावर होती है, तो आपको लोगों के लिए काम करें। कितने किसानों के जो आत्महत्या हमने रोकी पिछले 20 सालों में, 49,000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। करीबन 3.5 लाख किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की पिछले 20 सालों में। तो ये क्या अचीवमेंट है? ये कौन सी मतलब हम 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी को टच करने जा रहे हैं और उसका सपना देख रहे हैं, और इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है? तो ये किसानों की आत्महत्या। हमें क्या मिलता है? तो ये आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? संतोष देशमुख के केस का क्या हुआ? मतलब संतोष देशमुख की केस उछलने लगी तो औरंगजेब की कब्र आ गई। औरंगजेब की कब्र जैसे होगी तो दिशा सालियन का केस आ गया। दिशा सालियन के केस को दबाने के लिए फिर संजय राउत ने जो पुराना कुणाल कामरा का वीडियो है वो ट्वीट कर दिया, फिर कुणाल कामरा की तरफ केस बढ़ने लगे। तो ये जो है ना कि मैं पहले से कहता हूं और कितनी बार कह चुका हूं कि जब अधिवेशन होता है या ऐसे कुछ होता है तो जो मूल मुद्दे होते हैं, जो कॉमन इंसान है, जो आम आदमी है, उसके रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुद्दे काम करने वाले हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर रोजगारों की हालत क्या है? 7.5 लाख करोड़ के डावोस से हमने कॉन्ट्रैक्ट किए, कहां गए वो काम? कितनी फैक्ट्रियां बाहर चले गई? वेदांता फॉक्सकॉन का क्या हुआ? कितने सारे, मतलब ये जो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार कुछ नहीं दिया। हमने 1500 रुपए लाड़की बहन को दिए, उनके वोट खरीदे, अब पैसे नहीं है, अब इनके पास पैसे नहीं है। ये जिस तरह से ये गवर्नमेंट काम कर रही है ना कहीं ऊपर का काम रही, इनको कोई शाश्वत काम नहीं करना, स्ट्रक्चर काम नहीं करना है। जो शाश्वत बोलते हैं ना कि हम 20 साल या 25 साल जिस तरह से हमें काम करना है कि एक देश की, हमारे एक राज्य की, एक स्टेट की जो प्रगति करनी चाहिए, कि हमें आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, ऐसे कोई काम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉलिसी डिसीजन बहुत बड़ा मायने रखते हैं। क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्या है महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्या है? यहाँ पर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोंकण की बात करें, कोंकण का कैलिफोर्निया करना है, और जाकर हम वहां पर क्या देते हैं? तो एनरॉन देते हैं। वहां पर क्या देते हैं? तो जैतापुर पावर प्रोजेक्ट देते हैं। ये सब क्या चल रहा है? और जब कोई नई कंपनी आती है तो पुणे में जाती है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाती है। अब धोनी की कंपनी आ रही है, 5 लाख इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएगी, पुणे में बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट पर शरद पवार जी का अभी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट लगता है मुझे। हेमंत जी, आई वांट जस्ट शो यू, बिकॉज़ फडणवीस साहब ने अभी रिसेंटली हाल ही में कहा कि जावोस में जो साइन किया है, ऑल दोस थिंग्स हैव बीन 17 आउट ऑफ 51 एमओयू 17 हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसमें रिलायंस इंफ्रा, अलग अलग कंपनी, जेंसोल इंजीनियरिंग वगैरह। ही वांट्स टू टर्न संभाजी नगर इनटू और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हब, मैन्युफैक्चरिंग हब वो बनाना चाहता है, गढ़चिरौली को स्टील हब बनाना चाहता है। तो येतोय रे आवाज येतोय। तो हाउ डू यू सी दैट हेमंत जी? ये जिस प्रकार कह रहा 17 एमओयूज वर्सेस वर्थ 28,000, फडणवीस साहब कह रहा कि हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इमीडिएट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? इज ही रियली सीरियस अबाउट इट? I'll be happy if he is going to convert Sambhajinagar in EV hub. I will be happy. क्योंकि देखिए पहले जब 1991 में हमने गैट साइन किया था और उसके इफेक्ट आने में 96-97 हो गए थे, तो पहली यहाँ पर कार जो आई थी वो DCM दी और मटीज थी, और उसके बाद आई थी ओपेल एस्ट्रा। लेकिन सेम टाइम गोपीनाथ मुंडे जी तभी इस राज्य के गृह मंत्री थे और उनके पास बहुत अच्छा ओहदा था, तो उन्होंने स्कोडा का जो प्लान था वो औरंगाबाद लेके जाने वाले थे, उसके लिए शायद लैंड एक्विजिशन भी। तो मैं तो कहता हूं ना कि भाई किसी इंसान की अगर हम सेहत बनाने की बात करें, सिर्फ उसका अगर बाहु, उसका जब आर्म है वही बनेगा तो कैसे चलेगा? उसका सर बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? तो जो प्रोग्रेस है स्टेट का वो हर जगह पे होना चाहिए।
तो विदर्भ का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र का भी होना चाहिए, मराठवाड़ा का भी होना चाहिए, कोंकण का भी होना चाहिए, विदर्भ का भी सब जगह होना चाहिए। तो अगर इस तरह की प्लानिंग है, अगर विदर्भ में कुछ प्लांट लगते हैं, बिहार प्रोजेक्ट और बड़ा होता है, और पश्चिम महाराष्ट्र में इस तरह के ईवी हब बनाने की कोशिश करते हैं या ऐसे प्लानिंग है, तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, फडणवीस साहब का और उनके गवर्नमेंट का अभिनंदन Right, so let's- करूंगा। let's- लेकिन I think उसके what- साथ लेकिन साथ नहीं, उनके साथ साथ जी। मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रही है, दिन ब दिन बिगड़ रही है, उसको संभालिए। क्या चल रहा है आज? जी आज पुणे में क्या हो रहा है, आज बीड़ में क्या हो रहा है? बीड़ को हम पहले जानते थे कि सबसे मतलब जो किसानों की आत्महत्या है वो अमरावती के बाद, यवतमाल के बाद बीड़ में ज्यादा होती है। आज वहां पर उसकी पहचान क्या हो गई है कि सबसे बड़ा क्राइम रेट वहां पर हुए। ये वाल्मीकि कारण अभी इतने जल्दी पैदा हो गए, इतने मतलब अभी हो गया, इसके पहले नहीं थे। तो क्या ध्यान क्या था फिर गवर्नमेंट, इससे पहले की जो भी गवर्नमेंट थी, फिर वो महाविकास आघाड़ी की हो या अभी के महायुति की हो, तो ये क्राइम को कब क्यों नहीं किया गया? अब इतनी बड़ी तादाद पर केसेस बाहर क्यों आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारी Yes. बुनियादी बातों So पर let's भी ध्यान get, पड़ेगा। let's ये get वाघा Mr. का Khankale. स्टैचू कितना बड़ा है जी, जी। और औरंगजेब की कब्र कितने नीचे है, हमें उससे अभी क्या है ना, इससे परे होना पड़ेगा कि महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है ना, कुछ जी आगे की बात सोचनी पड़ेगी। So, गणेश खानकर साहब, वी ग्लैड टू हैव यू बैक। आपने शुरुआत करी और उसके बाद एकदम नेट चला गया। मुझे लगता है साजिश है आपके खिलाफ सर। सर अब जरा बोले प्लीज, गणेश खानकर जी बोलिए सर। राजीव जी, जी मेरा पानी उतरता देख। दोनों साहब कंप्लेन कर रहे थे। जी बोलिए ना सर, बोलिए बोलिए। दोनों नहीं, बस साहब खाली भागे। मैंने शुरुआत की 2 बातें आपको बताई। जी मैं लौट कर आऊंगा। आ गया आ गया आ गया मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। आ बोलिए। गया, दोनों साहब आ गए वापस। राजीव जी, मी पुन्हा येईन। जी आई एग्री। जी बोलिए अच्छा, सर। राजीव जी, मैं ये बहस सुन रहा था। जी देखिए, मैं एक बात जो कह रहा था कि आपने जिस तरह से विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है, और मैंडेट देते समय उन्होंने कुछ बातें कहने का प्रयास भी किया है। उन्होंने विरोधी पार्टी को भी जो सबक देना है उन्होंने दिया, और हमें भी जो मैंडेट जो देना है वो देते समय उन्होंने कुछ हमें संदेश दिया हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, विशेषतः मुंबई एमएमआर रीजन के लोग अब विकास चाहते हैं, और आप देखते होंगे कि नई सरकार आने के बाद 100 दिनों में जिस तरह से डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाकर तैयार हुआ, साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी बातें कर कर उस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, और आप देखते होंगे कि नई नई घोषणाएं होना प्रारंभ हो चुका है। कुछ बातें जो अभी इस समय चल रही है, मैं जो सुन रहा था, यानी जी, बोलिए, वाघा के बारे में हो या कुछ बातें जो अभी हेमंत कामरे जी क्राइम रेट के बारे में कहते होंगे, मुझे लगता है कि राजीव जी आप थोड़ा सा देखेंगे तो मीडिया में भी अब करप्शन ये विषय खत्म हो चुका है। जो कुछ करते होंगे वगैरह वो, लेकिन अब मीडिया में सवेरे करप्शन पर बात नहीं होती। मीडिया सवेरे चलती है, संजय राउत जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं उस पर चलाने की बात करते हैं, और दूसरी सारी बातें होगी। लेकिन एक बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जानबूझकर कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास करके जो डेवलपमेंट के इश्यूज हम लोगों के सामने ला रहे हैं, देखिए मेट्रो का काम हो या फिर महामार्ग का काम हो या वाढवण पोर्ट का काम हो या पालघर में हम फिर से एक नई मुंबई का निर्माण करने जा रहे हैं, वहां पर नया एयरपोर्ट आ रहा है। अब ये सारी बातें इसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे, ना होने दे रहे। अब हम देखेंगे तो अधिवेशन के शुरुआत में औरंगजेब का विषय लाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अबू हसीम आदमी ने उस समय वो विषय लाया, स्वाभाविक है। अब इस समय अबू हसीम आदमी ये विषय लाएंगे तो उस पर जनता की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, और वो प्रतिक्रिया आई। महाराष्ट्र सरकार ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए आदर्श है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी कि गोडवालकर गुरुजी ने ये लिखा है। अब ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, इस पर संशोधन करना पड़ेगा हमें। यानी जब हम टीवी पर बैठकर लाइव में ये सारी बातें करते हैं
तो हम कौन सा उदाहरण दें, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आता। फिर सावरकर जी बीच में आ जाते हैं। यानी सावरकर जी के बारे में देखिए, आपके मतांतर हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो त्याग की परिसीमा की है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती साहब, नहीं हो सकती। अब ये बार बार किसी के साथ फोटो खींच रहे, ये खींच रहे साहब, आपके सज्जन कुमार जी की फोटो तो सारी दुनिया के साथ थी। क्या कभी कांग्रेस ने सज्जन कुमार जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट आज तक दिया है क्या? दिल्ली में सिखों को जिंदा जलाया गया, क्या उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता बात करेंगे क्या? तो नहीं करने वाले। मैं आज इतना ही कहूंगा कि आज कोई दिल्ली के दंगे विषय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अब विकास की ओर चल पड़ी है। आप जिस तरह का बजट देखेंगे, बजट में जो बातें हैं, शायद इस पर मेरी अपेक्षा थी कि विरोधी पार्टी के नेता इस बजट को एनालाइज करते, इस पर बात करते। विरोधी पार्टी के नेता सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया उस पर बात करते हैं। यानी 2 महीने से आप देखेंगे साहब, तो जो बहस का एक तरीका है वह बदलते जा रहा है। अब हमारी बहस ये वाघा तक आकर रुकी है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता, जो मान्यवर छत्रपति संभाजी महाराज अभी जो जिस विषय को उठा रहे, वे खुद सांसद थे। यानी मुझे अजीब लग रहा है, और वे उस वंशज होने के कारण वो हर बार वहां पर रायगढ़ में जाते हैं, शिवनेरी में जाते हैं, जहां पर भी कार्यक्रम शिव प्रेमी जनता करती है, उन्हें सम्मान से बुलाया जाता है, उनका मान सम्मान होता है। ये अभी कैसे आए हैं? तो ये आरोप कैसे आया? ये आरोप आप पर है, ये गणेश खानकर साहब, ये आरोप आप पर है, ये आरोप आप पर है कि आप इसको ओबीसी मराठा करना चाहता है, ओबीसी वर्सेस मराठा। बिकॉज होलकर जी जिस प्रकार से इसको फाइनेंस किया ऐसा है ना, और 2 मिनट और संभाजी महाराज हमारे साथ आज नहीं है साहब। नहीं वो नहीं है, बट और आगे जाके सपकाल जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, वो सरकार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को तालिबानी सरकार बोल रहे हैं, वो औरंगजेब जैसे बोल रहे हैं, वो तुगलकी फरमान बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये कंफ्यूज प्रकार रिएक्शन आ रहे हैं, और जो आरोप भयंकर लगे आप पे। सर हेलो, एक बात क्या है बताओ प्रदीप जी। हाँ देखिए, अपने पास सबसे बड़ा हथियार है जब विधिमंडल का अधिवेशन होता है, जब संसद चलती है। देखो, ऐसा है कि आप जो बात कहते हो ना, पूरी दुनिया सुनती है और वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर होता है। जब पूरे देश ने अटल जी को संसद में भाषण देते सुना, तब अटल जी का सही अर्थों में पूरे देश को परिचय हुआ। अब जब ये सारी बातें जो आप कह रहे हो ना साहब, ये सारा करके आप राज्य नहीं चला सकते साहब। भाई चुनाव जीत सकते, मैं आज भी आपको बताता हूं, ये आज ही कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राजीव जी और प्रदीप जी, मैंने हमेशा से आपके चैनल पर 100 बार मैंने कहा है कि शरद पवार इस व्यक्ति की ताकत महाराष्ट्र में क्या है। तो 1978 में वे एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद में यदि हम उनके मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला देखें तो उन्होंने दूसरे पार्टियों को तोड़ा, फिर वो छगन भुजबल हो, बबन राव पाचपुते हो, या बाद की हम सारी उनके घटनाक्रम को देखें, शरद पवार जी की ताकत ये जीत कर लाने में नहीं है, दूसरों को परास्त करने में। न्यूसेंस वैल्यू इज द बेस्ट पावर ऑफ मिस्टर शरद पवार। Ganesh Khankar साहब, 1 second. I'll have to stop you there for just 1 second. 1 second only. Hemant Kamble ji, Ganesh Khankar साहब, and especially Sudhir Dhone साहब. Dr. Dhone, please pay attention. I am reading out what Dr. Golwalkar says about Chhatrapati Shivaji Maharaj in his book A Bunch of Thoughts. ये गुरुजी की किताब है डॉक्टर गोलवालकर की। उन्होंने ये लिखा है, अ वॉरियर लाइक शिवाजी, प्लीज डॉक्टर ढोने जरा ध्यान दें, अ वॉरियर लाइक शिवाजी शुड बी आवर इंस्पिरेशन टू सपोर्ट दोज हु आर रेडी टू कैरी ऑन द बैटल फॉर द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। ये गोलवालकर साहब ने लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। डॉक्टर ढोने जरा ध्यान दें, आप चाहें तो मैं 3-4 और पैराग्राफ पढ़ दूंगा, पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। जितनी तारीफ डॉक्टर गोलवालकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की करी है, और मुझे इसमें कहीं पर भी, हाँ, संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने लिखा है कि ही वाज वेरी इमेच्योर, ये बोला है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ करी है, प्रशंसा करी है। मैं आपके पास आता हूं वापस। गणेश खानकर साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी खानकर साहब। नहीं, ये मैं जो बात कह रहा था, जी बोलिए सर। इस समय महाराष्ट्र में
एक तरह की जो स्थिति आ रही है, और राजीव जी याद होगा इस पर हमने कभी बात भी की थी। जी इस समय महाराष्ट्र में राजनीति संक्रमण की अवस्था से जा रही है। अभी आपकी राजनीति पॉजिटिव वे पर नहीं जाती है, पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स पर चल रही है। यह आपसे कभी भी पॉजिटिव राजनीति की उम्मीद करना कुछ सालों के लिए अब बेमानी होगी, क्योंकि कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब विरोधी दल अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं। इसलिए औरंगजेब का मुद्दा हमने नहीं निकाला, वाघा का मुद्दा हमने नहीं निकाला। हम एक बात तो हमें स्पष्ट है साहब, हमें मैंडेट मिलने के बाद में हमें विकास करके दिखाना है, क्योंकि स्थानीय समिति के चुनाव आने वाले हैं। हमने उन पर नजर डाली है। विरोधी पार्टी अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, ये राजनीति करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। But you know, Khankar, just 1 minute before we go to Done साहब, you're giving conflicting signal. जैसे हम लोग हेमंत जी से बात कर रहे थे, मोदी ये सौगात है, मोदी भी दे रहे हैं और बुलडोजर भी दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, आप दोनों दे रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग है। आप चाहते क्या हो? मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ रहे या डर कर बैठ जाए? किस प्रकार से बुलडोजर और सौगात है मोदी, ये कॉम्बिनेशन क्या है गणेश खानकर साहब? इसलिए दोनों साहब बोल रहे तुगलक। हाँ प्रदीप जी, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हम करने वाले नहीं है। जो भारत माता की जय कहेगा, जो वंदे मातरम कहेगा, जिसे तिरंगा देखकर अभिमान लगता होगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये जात धर्म का विषय नहीं है। वो हमारा भाई है, भले वो मुस्लिम क्यों ना हो, वो हमारा भाई है। यदि यहां पर रहकर औरंगजेब के गुणगान गाने की हिम्मत करेगा, पाकिस्तान के जीतने पर जैसे मालवण में उसने घोषणाएं दी, वो घोषणाएं देगा। यदि सीरिया के विषय को लेकर यहां पर कुछ बात कहेगा, तो निश्चित रूप से उसके घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसकी जात धर्म हमारे लिए मायना नहीं रखती। इस देश के ऊपर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इस देश में मुस्लिम हाँ है, वो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, हमारा लेना देना इस मातृभूमि से है, जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है। इसके लिए जात धर्म का विषय प्रदीप जी इसमें नहीं आता है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन गणेश खानकर साहब, बिफोर आई गो टू ढोने साहब एंड कामले साहब, एक सवाल आपसे, मुझे मालूम है आपको जाना है, आपकी मीटिंग भी है, तो सर वन लास्ट क्वेश्चन टू यू खानकर साहब। सर जैसे अभी एज पॉइंटेड आउट बाय हेमंत कामले साहब, एंड आई हैव आल्सो बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, खानकर साहब जरा ध्यान से सुने। औरंगजेब की कब्र खुलदाबाद में, दंगे होते हैं नागपुर में, और अगर मराठा इतिहास देखा जाए 1707 3 मार्च औरंगजेब ऊपर वाले को प्यारा हो गया और उसका दफन हो गया उसी दिन। उसके बाद तकरीबन 160 साल तक मराठों ने इस पूरे रीजन पर दिल्ली तक राज किया। अटक से लेके कटक तक मराठा साम्राज्य था। उन्होंने तो आज तक कभी ये नहीं कहा कि ये औरंगजेब की कब्र तोड़ के बाहर करी जाए, क्योंकि मुगल एम्परर एट दैट टाइम वाज अ पपेट, कठपुतली थी मराठों की, कोई पूछने वाला भी नहीं था। अगर औरंगजेब की कब्र तोड़नी होती तो वो तोड़ देते, कोई भी नहीं पूछता। तो सर मे बी वी शुड लर्न फ्रॉम देम। द मराठास डिड नॉट डिसमेंटल औरंगजेब्स ग्रेव और हिज मेमोरियल, दे डिसमेंटल्ड द मुगल एम्पायर। अब गणेश खानकर साहब आप बोले प्लीज। गणेश खानकर साहब। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि औरंगजेब के बारे में आज तक, आप बोलिए राजीव जी। जी, औरंगजेब के बारे में आज तक बोलिए। जी हाँ, औरंगजेब के बारे में इतिहास में हमें जो आज तक पढ़ाया गया, जिस तरह की बातें बताई गई, अब ऐसा है कि इस जमाने में नई नई बातें लोगों के सामने आ रही हैं। अब नई नई बातें सामने आने के बाद में संभाजी महाराज के बारे में आज तक जितनी बातें लोग कहते थे, और मैंने भी आपके, यानी मैं खुद गोवा में था, वहां के मंदिरों पर
ये उल्लेख है कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज आने के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ये वहां पर उल्लेख है, बाकी कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेंगे। लेकिन इतिहास जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे बहस के लिए आपको नए नए मुद्दे मिलते जाएंगे। एक बात मैं ये स्पष्ट कर दूं, देखिए औरंगजेब की कब्र का विषय, यह विषय हमने नहीं निकाला है, यह हमने नहीं निकाला, यह विषय जिन्होंने निकाला ये उनको पता होगा। लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट बता दूं, देखिए जनमानस छत्रपति संभाजी महाराज की उस इतिहास की पंक्तियों को जब अब धीरे 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 खुलकर देखता है तो वो व्यतीत होता है। राजीव जी सर। मैं आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं, आपकी जनरेशन ने जो इतिहास पढ़ा होगा, क्या हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में उतना बताया गया जितना उन्होंने त्याग और अपना बलिदान दिया? तो नहीं बताया गया। हमें सिर्फ इतिहास उतना ही बताया गया जितना कांग्रेस ने हमको सिखाया था। अब धीरे धीरे ये सारा इतिहास हम सीखते जा रहे हैं, तो लोगों के मन में जो घटनाएं पता चलती है, स्वाभाविक है उसके प्रति गुस्सा होना ये लोगों में आने वाला ही है। अब ये बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं ना, औरंगजेब का विषय हमने निकाला था और आपने हमको नागपुर के बारे में बताया। राजीव जी एक बात थोड़ी सी ये संशोधन की है, ये मैं आज आपके चैनल पे ये कह रहा हूं और मैंने ये कहा भी था, आपको याद होगा कि हर 5-10 साल के बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर दंगे नहीं हुए थे वहां पर आपको दंगा दिखाई देगा। ये दंगा इसलिए होता है कि आने वाले वर्षों में ये सारी शक्तियां हम कहां पहुंचे हैं इसकी एक टेस्टिंग करती है। मुझे बताइए राजीव जी, क्या घंटे भर में पत्थर आ जाते हैं? क्या घंटे भर में सारा के सारा माहौल इतना बिगड़ जाता है कि लोग इकट्ठा आकर, और जो फडणवीस जी ने उस दिन हाउस में कहा कि तय करके कुछ एक कम्युनिटी के दुकान तोड़े जाते, बगल में दुकान है उसे कोई हाथ नहीं लगाता और इस दुकान को, देखिए ये तय करके हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये भविष्य की चिंता है कि जिस दिन ये लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस दिन क्या होने वाला है, ये इसका एक ट्रेलर है, आप उसको उस तरह से देखिए। जी राइट, थैंक यू सो मच सर। गणेश खानकर साहब has to go. Thank you very much sir for joining us. I know you have your meeting starts at 8 o'clock. बहुत बहुत सर गणेश कामकर साहब, डॉक्टर बोलिए। नहीं गणेश कामकर साहब जरा 2 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए सर। मैंने सुनिए ऐसा है, खानकर साहब ने जो बोले जी, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि कुछ हिस्सों में क्यों हो रहा, अलग अलग हिस्सों में ये ऐसे दंगे। मैं आपको बताऊं, जो अमरावती जिला है, अमरावती लोकसभा मतदार संघ, वहां पे भाजपा मुक्त था। वहां पे अमरावती लोकसभा मतदार संघ में ना लोकसभा सदस्य भाजपा का था, ना उसके अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सदस्यों में कोई भाजपा का था। यानी अमरावती लोकसभा मतदार संघ ये पूरा भाजपा मुक्त मतदार संघ था, ये 2019 में। अब 2023 में 22 से ऐसा शुरू कर दिया 24 तक कि हमने पहले बोला कि ये अभी खराब हो गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया, अनिल बोंडे से लेके या वो नवनीत राणा से लेके, इन्होंने इतना माहौल खराब किया कि वो वहाँ की एक एक्स मिनिस्टर है सुनील देशमुख, वो बोले कि यार अकोला में नहीं हो रहा, यवतमाल में नहीं हो रहा, ये सब माहौल खराब अमरावती में क्यों हो रहा? तो मैंने बोला अमरावती में इसलिए माहौल खराब हो रहा क्योंकि अमरावती ये भारतीय जनता पार्टी मुक्त लोकसभा मतदार संघ है। यहाँ पे अभी भाजपा को सीटें लाने की है, तो देखिए जहाँ पूरे भाजपा की एक भी सीट नहीं थी, अब भारतीय जनता पार्टी के वहां पे 6 में से 5 विधानसभा सदस्य है, और एक जो जीता है वो शिवसेना का, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीता है। उद्धव ठाकरे गठ का जो जीता है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीता, क्योंकि उसके खिलाफ आनंदराव अडसूळ जो शिंदे साहब के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, भाजपा के लोगों ने उनका विरोध में काम किया, तो वहां पे उद्धव ठाकरे का सीट आ गई, नहीं तो 6 के 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी महायुति की आती थी। तो ये जानबूझ से हो रहा है सर, ये कोई ऐसा नहीं है, जानबूझ से प्लानिंग के साथ हो रहा है। और कई मुसलमान आते हैं। खानकर साहब बोलिए जाने के पहले सर, खानकर साहब बोलिए सर प्लीज। मुझे जाना था लेकिन नाम खानकर है कि खामकर है सर? ये यम है, मुझे बड़ा अच्छा है कि खानकर है? खानकर KHAN जी। हाँ बोलिए सर प्लीज।
गणेश शंकर जी बोलिए। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है राजीव जी। जी मैं एक जवाब इन्हें देना चाहता हूं। बोलिए सर। इस देश में राजीव जी महाकुंभ हुआ, बराबर है। जब यह महाकुंभ हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई, तब कुछ नेताओं के स्टेटमेंट्स आना प्रारंभ हुआ। अब आखिर में राजीव जी महाकुंभ खत्म हो चुका है जी। देश ने इस सारे महाकुंभ में जो जो हुआ वो नजदीक से देखा। 65 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया और देश में किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी, बगल में कौन नहा रहा है या कौन प्रसाद दे रहा है। हजारों लोग खाना खाते थे, कौन प्रसाद दे रहा है, कौन खाना खा रहा है। अब मैं एक ही लाइन में यदि कह दूं तो इस देश के हिंदू जनता ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया है। अब ये क्यों फेरा है, ये कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। अब यदि हम जनतंत्र पर विश्वास रखते हैं तो मैं इतना ही इनसे कहता हूं कि 1984 में हम 2 सीट पर थे, 2 सीट पर। तब क्या हमने दंगे कराए थे या आपने दंगे कराए थे? क्या था? जब आप हारते हो तो आप हम पे आरोप लगाते हो कि हमने दंगे कराए, और जब आप जीतते थे तो क्या आप दंगे करके जीतते थे क्या? देश की जनता ने क्यों कांग्रेस से मुंह फेरा है, कम से कम ये एक बार ये देख तो ले। और राजीव जी मैं आपको बताऊं, जब मैं आज आपके सामने इस चैनल पे बैठा हूं, हमने चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के चौथे दिन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष ने बैठक की, जो आज तक हम काम कर रहे हैं साहब जी। आज तक, आज भी मैं रात को 11 बजे तक हमारी बैठकें चालू है। संगठन की नई रचना की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होंगे, उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। हमने कांग्रेस को रोका है क्या? अरे कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि जनता आपको क्यों वोट नहीं दे रही है। हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों लगा रहे हो आरोप? जब लोकसभा में आप जीते तब अच्छे थे, विधानसभा में हार गए तो हमारे ऊपर आरोप करेंगे भाई, ऐसा क्यों? नहीं, संगठनात्मक जो आपका काम है भारतीय जनता पार्टी, हम तो देख बोलते हैं ना, हमारे नेता भी कहते हैं कि आरएसएस से कुछ सीखो, उनका संगठन कैसा होता है देखो। हम भी बोलते हैं, हम हमारे मीटिंगों में बोलते हैं भाजपा ऐसी कर रही, भाजपा यहाँ ये तैयारी कर रहे, हम बोलते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक काम है, जिस तरह काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी कोई बुरी राय नहीं है, हम उसका यानी सम्मान करते हैं। लेकिन आपकी नीयत बहुत खराब है। आप देश में लोगों को यानी हिंदू मुसलमानों में, हिंदू दलितों में झगड़ा करने का काम, उनमें दंगे कराने का काम आपके लोग करते ना। ये नीलेश रानी क्या है, नवनीत राणा क्या है, ये अनिल बोंडे क्या है, ये लोग कौन है? उदय राजे तो आपके सांसद है, उदय राजे ने शुरुआत की है। हम शिवाजी महाराज के वंशज है, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनके जो दूसरे भाई है संभाजी महाराज की अपनी इन्होंने भी अभी ये जो मंत्री बने शिवेंद्र राजे भोसले, किस तरह की बात करते हैं ये लोग। अभी ये शिवाजी महाराज के वैचारिक वारसदार रहे नहीं। अगर ये शिवाजी महाराज के वैचारिक वारसदार रहते थे तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते थे। नेहरू जी ने जो किताब लिखी है उसको सुनिए सर, नेहरू जी ने सुनिए, नेहरू जी की अगली नहीं उसमें बदल हुआ। सुनिए सर, नेहरू जी ने जो लिखा था, नहीं नेहरू जी ने जो लिखा था, बाद में उसमें जो नई एडिशन में जो उनको जानकारी दी थी। कामरे जी, 2 important things राज साहब ठाकरे ने किया। राज साहब ठाकरे ने गणेश खानकर साहब, सर और आपके पास आता हूँ ना, खानकर अपना हेमंत जी बहुत दिनों से समय से नहीं बात किया। हेमंत जी, राज साहब ठाकरे जी ने थैंक यू, 2 इंपॉर्टेंट चीज चुनाव के मद्देनजर जो और संगठन को एक ढंग से नया रूप दे दिया। इस created new kind of management within the organization, especially तो उसमें थोड़ा because बाण नंदगांवकर जी, संदीप देशपांडे जी अलग अलग जगह पे अलग अलग जिले में आपने पद देना शुरू कर दिया है। हाउ इज दैट? उसमें थोड़ा रोशनी डालेंगे हेमंत जी? नहीं, वो हमारे संगठनात्मक बदल है और इसको कहीं ना कहीं इस तरह से रोटेशन पॉलिसी पे नए जो होते हैं, नए नेतृत्व को आगे लाने की बात है, वो हमारे संगठन की बात है। ये कोई इस डायस पर इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं गणेश खनकर जी बहुत जल्दी निकल गए, मुझे कुछ उनसे बातें करनी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही है, कि जो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में इतनी भीड़ जम गई कि
औरंगजेब की कब्र थी खुलताबाद और दंगे हो गए नागपुर में, तो जिस तरह के उन्होंने कहा कि ये लिटमस टेस्ट होती है कि हम कहां तक पहुंचे, तो इस वक्त 10 साल हो गए, 10 क्या 11 साल हो गए आज भारतीय जनता पार्टी को पावर में आके। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की कमी नहीं कह सकते इसको, कि आपके यहां पर दंगे हो जाते हैं अचानक। बीच में भीमा कोरेगांव में ऐसे ही कुछ जमावड़ा हो गया था और बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। अब यहाँ पर ये औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर नागपुर में कोई हादसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर की कमी है। और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के पास ही होम मिनिस्टर का जो एक जिम्मेदारी उनके पास ही है। तो ये फेलियर को कहीं ना कहीं तो छिपाने की बात है। जैसे दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा ना कि बार बार ये प्रगति की बात कर रहे हैं कि विकास की ओर राज्य को लेके जा रहे हैं। राज्य आप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट 9 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में है। मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, हर एक के ऊपर हर किसी ने कर्जा लिया हो नहीं लिया हो, हम करीबन 75,000 रुपए हमारे कर्जे पे हम लोग हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने कर्जे उठाए। और उसके बावजूद लाड़की बहन को 1500 का 2100 हो गया। अब ये पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हर एक की अब वहां पर ये जांच करेंगे कि ये एलिजिबल है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से राजनीति को ये मोड़ रहे, अपनी तरफ मोड़ रहे, ये आने वाले दिनों में कहीं महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूं कि दिवाला निकाल देंगे इस तरह की इनकी जो हरकतें हैं। आपने जो अभी जो आपने बात मेंशन करी, सॉरी वो बात रह जाएगी नहीं कि एलिजिबल है या नहीं, अब उसके ऊपर बात हो रही है कि लड़की बहन में एलिजिबल कौन है कौन नहीं है। तो आपने पहले कैसे दे दिए वो पैसे? आप वापस लीजिए ना, पहले आपने कैसे दे दिए? अगर इन एलिजिबल है, हाउ डिड यू गिव द मनी? हेमंत कामले साहब, नहीं, मैंने तो देखिए आपके चैनल पर में पहले भी हमने कहा था कि लाड़की बहन योजना जो लाने वाले हैं, जो उन्होंने लाई थी, जब मैं इलेक्शन की पहले की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने डिक्लेयर किया तब की बात कर रहा हूं, तो ये जो योजना थी, तो इसके लिए कंसेंट किसके लिए गए थे? पैसे किसके अकाउंट से गए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट से गए जी। और इसका क्रेडिट किसने लिया? एकनाथ शिंदे के शिवसेना पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और अजित पवार के एनसीपी ने। तो अगर आपको इस तरह की योजनाएं लानी है, आपके मेमोरेंडम में इस तरह की योजनाएं डिक्लेयर करनी है, तो आपके पार्टी के फंड से दीजिए पैसा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, हमारे टैक्स पेयर के हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें जो पैसे है, इससे आप पैसे मतलब बांटोगे, ये फ्री में बांटोगे, उसका क्रेडिट लोगे। ये कौन सी बात है? करेक्ट। इसके आगे से कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, इस तरह से ऐसी योजनाएं यहां पर मत लागू करिए। आपको देना है तो लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, लोगों को अच्छी सड़कें दीजिए, लोगों को यहां पर रोजगार लाइए, अच्छी फैक्ट्री लगाइए। और यहाँ का जो ये यहाँ पर पढ़ा लिखा जो ये युवा है, उसको नौकरी दीजिए ना। आप दावोस में जाके लाखों करोड़ों के, हर बार जो भी सीएम जाता है, जो भी उद्योग मंत्री जाता है, वो 1.5 लाख करोड़ के वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है, 2.5 लाख करोड़ के। अब तक 7.5-8 लाख करोड़ के तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। फैक्ट्री कहां गई? वेदांता फॉक्सकॉन वहां पर क्यों किया? गुजरात में क्यों गया? कितने सारी फैक्ट्री गुजरात या अन्य स्टेट में क्यों जा रही है? क्योंकि यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, उनको सुविधा नहीं दे रहे हो, आपके पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। ये अगर बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर इस मुद्दों पर से मोड़ने के लिए फिर ऐसे मुद्दे लेके आती है। अब उन्होंने गणेश फनकर जी गए, उनको एक सवाल था कि अगर बात अबू आजमी ने कही थी तो आपके नीतीश राणे इसके लिए इतने क्यों ये करके गए, जब आपको पता था कि कहीं ना कहीं आपके विकास के मुद्दों पर मोड़ने के लिए ये औरंगजेब और ये बाकी सब मुद्दों पर लेके जा रहे हैं। तो आप सिंह पार्टी समझदार है, आपके पास बड़ा थिंक टैंक है, तो आपको वो मुद्दे पर जाना नहीं चाहिए था। और जो सभागृह का इतना जो समय जो व्यतीत हो गया, इसको आप रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं इनको दोनों जगह से खेलना है। यहां पर दिखा रहा है कि हम हिंदुओं के जो यहां पर मसीहा है, और यहां पर उनको मुस्लिमों को विरोध भी करना, और इसी समय इनको वो पैकेट भी बांटने जो ईद के समय पर आप दीजिए। मुसलमान कौन से दुश्मन है? दीजिए फिर सबको। जो अच्छे मुसलमान है उनको आप संभालिए, लेकिन जो देशद्रोही है उनके साथ आपके भी कुछ लोगों के फोटो है, उधर आपके लोग भी हैं उनके साथ मिले जुले। ये कहीं ना दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे।
इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इनके बैटलफील्ड पे हम लोग तो नहीं खेलेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाकर इनके बैटलफील्ड पे नहीं खेलेगी। हम लोग उन पर हमने यहां पर बुनियादी मुद्दे पर लेके आएंगे। क्या कि मुंबई के जो, देखिए एक बात कहता हूं राजीव जी और प्रदीप जी और सुधीर जी, आप भी सुनिए। अब मुंबई की पॉपुलेशन 2 लाख करोड़ के ऊपर, 2 लाख मतलब 2 करोड़ के ऊपर गई है। सेंसस तो हुआ नहीं है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट हो गया है 74,000 करोड़। पिछले 6 सालों में 41,529 करोड़ 41,529 करोड़ हेल्थ पर बजट किया गया। हेल्थ बजट हमारा 6 सालों का है। और फिर भी आप भगवती हो या अग्रवाल हो, उसको पीपीपी मॉडल पर दे रहे हो। ट्रॉमा सेंटर की हालत खराब है, राजावाड़ी की हालत खराब है, कुपर हॉस्पिटल की हालत खराब है, तो पैसे गए कहां पर? इन सवालों पर हम इनको लेके आएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। 3 साल हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मुदत थी वो खत्म हो गई। इसके अभी भी ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक सवालिया निशान है। 2025 में होंगे या 2026 में होंगे? सवाल हमारे जो आम जनता के लिए, वो सवाल हम उठाएंगे। हम अभी इनके जाल में कहीं पर उलझेंगे नहीं। कामराज साहब, हेमंत जी बात यह है कि ये यूजुअली आप उठाते हैं मामला, ये बार कांग्रेस ने इस चीज को उठा लिया। परीक्षा हो रहा है, वैकेंसीज है महाराष्ट्र में, और परीक्षा हो रहा है गुजरात में। परीक्षा हो रहा है गुजरात में 166 पोस्ट ऑफ फॉरेंसिक लैब। महाराष्ट्र के फॉरेंसिक लैब्स के 166 पोस्ट के लिए परीक्षा हो रहा है गुजरात में ना। ये एक विडंबना है। आप हमेशा अग्रसर रहते थे ऐसे मैटर्स में, ये बार कांग्रेस ने इस चीज को उजागर किया। हेमंत जी, व्हाट इज हैपनिंग? यू फाइंड इट फेयर? इज इट फेयर? देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति के लिए, महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए कांग्रेस अगर सवाल उठाती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उठाती है, या शिवसेना उठाती है, या बीजेपी उठाती है, महाराष्ट्र के हित की बात हो रही है ना, तो मैं अगर कांग्रेस से मुद्दा उठाए तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको सपोर्ट भी करता हूं कि महाराष्ट्र के हित की सबको बात करनी चाहिए। जब डीएमके हो, एडीएमके हो, एआईडीएमके हो, ये जब तमिलनाडु के हित की बात होती है सब एक हो जाते हैं। तो मैं तो कांग्रेस के जितने प्रवक्ता बैठे ना, तो उनको भी कहेंगे, आपके आकाओं को कहे, महाराष्ट्र के आकाओं को, कि जब महाराष्ट्र के हित की बात होती है ना, तो दिल्ली की बात मत सुनिए, आप महाराष्ट्र की बात सुनिए। भाई बीजेपी के जो आका है ना महाराष्ट्र के, फिर वो फडणवीस हो, गडकरी हो, और कोई हो, कि जब महाराष्ट्र के हित की बात होती है ना, तो महाराष्ट्र की हित बात करने के लिए आप दिल्ली के आकाओं की बात मत सुनिए। हमने हमारी बाउंड्री तय की है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमारी बाउंड्री तय की है। तो महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, महाराष्ट्र का भूगोल है, महाराष्ट्र का इतिहास है, मराठी भाषा है, इसके लिए हम हमेशा कायम रहेंगे। हम इसकी बात हमेशा करेंगे। अगर ये बात अगर कांग्रेस ने की है तो मैं जरूर आपके चैनल पर इनका अभिनंदन करता हूं। और इसके आगे से यही रवैया होना चाहिए कांग्रेस का भी, कि महाराष्ट्र के हित की बात के लिए आप जरूर बात करिए। और राज साहब ने एक सेंसर बोर्ड कहा कि सेपरेट सेंसर बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मराठी फिल्म्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट नीड हेमंत जी? यू फाइंड एब्सोल्यूट नीड फॉर दैट, मराठी फिल्म्स के लिए सेपरेट सेंसर बोर्ड? जरूर, क्योंकि देखिए कैसे ना, बीच में नामदेव ढसाल, आपने कभी नाम सुना है? जी, बहुत बड़े कवि थे, बहुत रिबेलर कवि थे वो। तो इनके बारे में किसी ने पूछा था कि हु इज नामदेव ढसाल। अगर महाराष्ट्र की बात ही, महाराष्ट्र से संस्कृति नहीं पता आपको, महाराष्ट्र का लिटरेचर पता नहीं आपको, तो जिस तरह की मांग तो होनी ही चाहिए। फिर अगर वहां पर दिल्ली पे बैठ के और यहाँ की आपको यहाँ का लिटरेचर पता नहीं, यहाँ की संस्कृति पता नहीं, आपकी भाषा पता नहीं है, तो हम और क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। डॉक्टर ढोले, डॉक्टर सुधीर ढोले सर, अभी जो डिस्कशन हुआ, जो हेमंत काबले साहब ने डिस्कशन की शुरुआत करी, इफेक्टिवली आपने करी, उसके बाद हेमंत काबले साहब ने कहा कि जो रेलेवेंट मैटर्स हैं, एक्चुअल मैटर जो डिस्कस होना चाहिए, वो बजट सेशन में डिस्कस नहीं हुआ। और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वैसे बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, उनके साथ जो डिस्कशन हुआ, जो एक्चुअल जवाब आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। कि भाई जैसा इन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर इतना क्राउड इकट्ठा हो गया नागपुर में, और पुलिस वालों को, पुलिस की इंटेलिजेंस को, सीआईडी को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मैं कहता हूं जो पुलिस स्टेशन से जो खबर आई है नागपुर की, वो ये है कि उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई थी। अगर वो एक्स्ट्रा फोर्स आधे घंटे के भीतर पहुंच जाती तो कुछ नहीं होता। तो ये क्या चल रहा है?
डॉक्टर ढोने, बताएं सर। सर ऐसा है कि जब भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है जी या दंगे होते हैं या माहौल खराब होता है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उसका पॉलिटिकली फायदा होता है। ये बार बार देखा है। नरेंद्र मोदी जी का तो वो शुरुआत ही वैसी है। गोधरा जब इलेक्शन हुआ तो गोधरा हत्याकांड क्यों हुआ? अगर वो गोधरा हत्याकांड नहीं होता था तो उसके बाद दंगे भी नहीं होते थे, तो नरेंद्र मोदी हार जाते थे इलेक्शन। इसीलिए वो उनका हमेशा का है। तो वो जो फार्मूला है उनका, वो तय फार्मूला है। अब गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो नागपुर में रहते हैं, उनके गांव में कुछ हो रहा, पुलिस डिमांड कर रही है ज्यादा बंदी, वो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? उनको सब समझता, लेकिन उनको वहाँ माहौल खराब करना था। और वो माहौल खराब होने के बाद पूरे राज्य में माहौल खराब होता था। और जो असेंबली सेशन चल रहा है उसमें इनके लोग जो है, कौन है? नीतेश राणे कौन है? इनका मिनिस्टर है। बाद में ये शिवसेना वालों ने कुणाल कामरा का वो जो स्टूडियो जहाँ पे ये किया था, उन्होंने तोड़फोड़ किए। यही लोग हैं बोलने वाले, यही करने वाले हैं। तो ये तो कहने का मतलब ये हुआ सर, जो मैं असली मुद्दों पर आ रहा हूं, सॉरी वी रियली हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, बट माय पॉइंट इज वी शुड बी डिस्कसिंग वाटर मैनेजमेंट इन महाराष्ट्र. We should be discussing what are we doing as far as farmer suicides are concerned. We should be discussing crop management. क्या करके आ रहे हैं सर हम लोग? एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है सर. ये जानबूझ से करते हैं सर, ये नहीं चाहते ये लोग किसानों की। अभी इन्होंने डिमांड किए थे कि किसानों को, इन्होंने वचन दिया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कहाँ कर रही है? नहीं कर रहे। लाडली बहनों के जो पात्र नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी, उनको भी पैसे दिए। अभी उनकी कट करे पैसे, इसलिए देखिए सरकारी खजाने से पैसे जा रहे हैं, वोट देंगे। तो ये हमेशा का है सर। जहाँ पे पर दोनों साहब, फडणवीस साहब पूरे लिस्ट लेके बैठा है कि मैं क्या डेवलपमेंट प्लान कर रहा हूं। मैं फडणवीस साहब का कहना है आई एम क्रिएटिंग थर्ड मुंबई। बोले मैं थर्ड मुंबई क्रिएट कर रहा हूं जो इस मुंबई से डबल बिगर है, जबरदस्त बिगर है। उसमें हम लोग अलग अलग जो एजुकेशन, इनोवेशन, डाटा सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स, एक एयरपोर्ट, उस प्रकार से प्लान किया। नवी मुंबई में उनका कहना है कि मैं 5 नए यूनिवर्सिटीज बाहर के, विदेश के यूनिवर्सिटीज लेके आ रहा हूं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया का, 3 यूएस के और एक यूके। तो हेमंत जी वांट टू से समथिंग? सर ऐसा है न, ये तो चाहते हैं, इनके दिल में तो ये है सर हाँ बोलिए ना। ये फडणवीस साहब के दिल में तो ये है कि मुंबई जो है गुजरात को दे दो। थर्ड मुंबई क्रिएट कर, तीसरा मुंबई क्रिएट कर। गुजरात के प्रोजेक्ट है, प्रदीप जी, बोलिए जी। हाँ हेमंत जी बोलिए। ये जो फडणवीस साहब कहते हैं ना कि तीसरी मुंबई को हम इजाद करेंगे या एक डेवलप करेंगे। हाँ, पहली बात तो मुझे बताइए कि जो एक मुंबई है, एक नवी मुंबई है, एक पालघर वसई है, इसको आप पानी नहीं दे पा रहे। आप तीसरी मुंबई की जो पॉपुलेशन है, जो भिवंडी से लेके अलीबाग और बीच में गोल्डन ट्रायंगल में करीबन 2.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन बिसाने की जो बात करिए ना, वसाने की, तो मुझे मेरी समझ में एक बात नहीं थी, आपके पास मुंबई को देने के लिए पूरी तरह पानी नहीं है। आपको ये कंक्रीट का जंगल मतलब आप प्रोग्रेस कहते हो? आपको जो हमारे देश की पहचान क्या थी? कृषि प्रधान देश। आपको ये गांवों की तरक्की करिए, आपको किसानों की तरक्की करिए। जितने भी अभी MBA और MIT IIM के जो इंजीनियर सब खेती करने लगे। कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि देश कहां पर जा रहा है, देश की युवा शक्ति क्या सोच रही है। स्टार्टअप मॉडल में देखिए हर कोई यहां पर अब खेती करने लगा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कंक्रीट के जंगल बढ़ाना छोड़ दीजिए, ये प्लानिंग छोड़ दीजिए। आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है? यूएस की यूनिवर्सिटी जरूरत, हर कोई की शिक्षा यहां पर मिलती है। ये बड़ी बड़ी बातें बोलकर कहीं पर गुमराह मत करिए लोगों को क्या चाहिए ना उसकी पहले तो समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए, तब आपको समझ में आए कि इस देश की तरक्की किसमें लिखी है और किन बातों पर लिखी है। तो ये बड़ी बातें कहकर, बड़े बड़े बजट बढ़ाकर कुछ नहीं होगा। यहां पर लोगों के हाथ में काम नहीं है जी। मैंने पहले भी गिनाया था आपको, और आज भी बोलता हूं, हमारे देश के मतलब जितने भी जो बिलियनर्स है, बिलियनर्स में हमारा देश है तीसरा। पहला है यूएस, दूसरा है चाइना और तीसरा है भारत। लेकिन पर कैपिटा इनकम में 198 कंट्रीज में हम लोग है 148,
मोदी जी, फडणवीस जी और जितने भी निर्मला सीतारामन जी आप सुनते होंगे तो इस बात पर जरा अमल कीजिए और उस तरह से देश की, इस राज्य की, जितने राज्य हैं उनकी पॉलिसी बनाइए, उन राज्यों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए, एजुकेशन पॉलिसी बनाइए, तो देश तरक्की करेगा। 5 बिलियन नहीं, 5 ट्रिलियन नहीं, 50 ट्रिलियन तक भी जाएगी हमारी इकोनॉमी। लेकिन उसके लिए पहले तो जिन बुनियादी मुद्दों से आप धार भटका रहे ना, उनसे मत भटकाइए, असली मुद्दे पर काम करिए। दुरुस्त बात है। कहने का मतलब ये हुआ ढोने साहब, जो अभी अभी हेमंत कामले साहब ने कहा है ना, सुधीर ढोने साहब, इट शुड रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। आपको इससे किसी की याद आनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब महालनोबिस प्लान जब उन्होंने इंप्लीमेंट करी भारत में, तब उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप ये कर रहे हैं, आगे 5 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस भटक चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि एमएनएस हैज अडॉप्टेड द कांग्रेस पॉलिसी, जो आपकी पुरानी पॉलिसी थी, क्रांतिकारी पॉलिसी, जो वास्तविकता में देश के आज काम आ रही है। जो ये बड़ी बड़ी ये यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग यहां पे यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं। सर, 5 यूनिवर्सिटी। सर मेरी बात सुनिए, जो अभी अभी हेमंत कामले साहब ने कहा, ढोने साहब आप भी सुनिए, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ। सर, out of the top 50 Fortune 500 companies, top 50, 25 to 28 have Indian CEOs who have all studied here in Indian universities. उनको तो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो यहीं से पढ़ के गए। सर, क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो? We have a great education system, let's implement it properly. That's all that I'm saying. और इसमें ढोने साहब, क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी है, आपकी पार्टी अकेली एक पार्टी है, मैं आज भी बोलता हूं सर, भुज से लेकर के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक, और लेह और लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सर, यहां पे यू मस्ट रेज योर वॉइस एग्जैक्टली द वे द एमएनएस सेड। राज ठाकरे साहब ने ये जो बात कही है ना, वो आपको बोलनी चाहिए। अब आप बोलिए ढोने साहब, प्लीज। बोलिए सर, अब क्या हुआ सर, आपकी बोलती बंद हो गई? दोनों साहब क्या म्यूट किया था मैंने, म्यूट किया था। हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ऐसा है कि हम हमारे लोगों, हमारे पार्टी में बोलते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, जब ये समाज का आदमी जीतता नहीं है फिर भी आप उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? तो वो पार्टी, हमारे पार्टी के नेता बोलते हैं कि देखिए भाई, हर सीट को जीतने के लिए नहीं रहती है, आपको सबको साथ में लेके चलना है, सबको न्याय देना है। तो कांग्रेस तो ऐसा नहीं करती है। हम तो बोलते हैं कि भाई गलत डिसीजन है आपका, ये कैंडिडेट जीतता नहीं, अरे उसके समाज की वोट नहीं, आप जरा सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं जवाब को, जवाब तो दो सर। सुनिए, सवाल का जवाब दो। कांग्रेस जो है, सुनिए सर, कांग्रेस जो है वो सबको साथ लेने की बात करती है, कोई पॉलिटिकली फायदा देखती नहीं है। जब ये जीएसटी का मुद्दा आया था तो अशोक चौहान प्रदेश सीबीएसई जिस प्रकार से इम्पोज, आई थिंक राजीव जी, मिस्टर डोने नेम इज इंक्लूडेड इन एडीज लिस्ट, दैट्स व्हाई इज नॉट आउटस्पोकन। हेमंत जी, यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन द सीबीएसई थिंग? सीबीएसई एनफोर्स जिस प्रकार से कर रहे हैं, वन होल नेशन विल बी यूनिफॉर्म वेयर एजुकेशन इज कंसर्न, आपका व्यू, बिकॉज यू हैविंग अ व्यू ऑन एवरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, अभी कैसे है ना कि सीबीएसई की जो सिलेबस लेके आ रहे हैं, तो हमने तो पहले ही कहा है कि भाई सीबीएसई के सिलेबस लेके आएंगे और सबके लिए कॉमन रहेगा, लेकिन फिर उस देश की, हमारी देश में विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न इतिहास है। महाराष्ट्र के इतिहास का क्या होगा? क्या आपके सीबीएसई बोर्ड में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताया जाएगा? पेशवा के बारे में बताया जाएगा? ये सब इतिहास हमारा जो है तो कहीं ना कहीं एबॉलिश करने की कोशिश मत करिए, इस इतिहास को भी ठीक से पढ़ाइए। हम इस सिलेबस को अच्छी तरह से चेक करेंगे कि ये सीबीएसई बोर्ड ने किया या फिर ये हमारे स्टेट बोर्ड के क्या प्रॉब्लम है। यहां पर रघुनाथ माशेलकर एसएससी बोर्ड से गए, जयंत नार्लिकर एसएससी बोर्ड से गए, कितने इंटेलिजेंट। अभी आपके अब्दुल कलाम स्टेट बोर्ड से तो पढ़ के गए, तभी तो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड नहीं था। ये फैशन क्या लेके आ रहे हैं नए नहीं,
ये नई नई फैशन क्या ले रहे? ये आपके सुंदर पिचाई सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े थे? कितने के नाम गिराऊं मैं आपको? देखिए, एजुकेशन क्या देना है और बच्चों को एग्जैक्ट क्या पढ़ाना है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, मैंने जो इतिहास पढ़ी थी, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, वो मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मेरे बच्चे को कुछ अलग ही इतिहास समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह पर, इस बात पर अमल करना चाहिए, अच्छी तरह सोचना चाहिए कि आपको देश को किस तरफ लेके जाना है। वो तैमूर लोग आया और चंगेज खान आया, उसने क्या किया? इससे अच्छा शिवाजी महाराज ने क्या किया? ये ज्यादा पढ़ाई है। दुरुस्त बात है सर। डॉक्टर धोने हैज, he owns एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर धोने, आपका व्यू क्या है सीबीएसई और ये एसएससी विवाद में? डॉक्टर धोने सर ऐसा है हाँ। कि अभी जो इन्होंने बोले कि सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न लाएंगे, तो जिसको हर शहर में है सर। अब मेरे भी बच्चे जो है सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते हैं, तो जिसको जैसा लगता है वैसा वो कर रहे हैं, लेकिन आप कंपलसरी करेंगे कि ऐसा ही रहना चाहिए, तो वो गलत बात है। हर शहर में सर अलग अलग पैटर्न के स्कूलें हैं, तो जिसको जो चाहिए वो पढ़ेगा। जिसके बच्चे जितने टैलेंटेड है, जिसके पास जितना पैसा है, फीस देने की कैपेसिटी है, वो हिसाब से स्कूलें हैं, तो वो लोगों को अलग अलग चॉइस रहनी चाहिए। आप कंपलसरी करेंगे तो ये बात बराबर नहीं, और एक आप बोलेंगे कि नहीं इसी तरह का रहना चाहिए, तो गलत बात है। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी सर भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति पे तो हमको जरा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके पीस में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके लोग पैसे कमा रहे हैं उसमें से, कई विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। नहीं, सुधीर जी, आपके सरकारों ने भी बहुत बड़ी गलती की कि इन्होंने हमें शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ाया। नहीं सर आपके सरकारों ने कभी संभाजी महाराज नहीं पढ़ाए, आपके सरकारों ने कभी बाजीराव का इतिहास नहीं दिया, आपके सरकारों ने कभी मराठों का इतिहास ठीक से पढ़ाया नहीं। आपने दीने इनाई पढ़ाई, आपने औरंगजेब पढ़ाया, आपने शाहजहां पढ़ाया। ये कहीं ना कहीं आपके सरकारों की गलती है। ये जो भुगत रही है ना कांग्रेस, ये आपके सरकारों को भी गलती है। सिलेबस बनाने वाले मुसलमान लेखक नहीं थे, मुस्लिम विचारवंत नहीं थे। सिलेबस लिखने वाले यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग थे, और कहीं ना कहीं आप मुद्दों को भटकाते हो कि सिलेबस आप ये ब्राह्मण और ओबीसी और मराठा कहाँ से लेके आ रहे हो? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। तुकोजी होलकर धनगर समाज के थे, ये अभी उनकी क्यों? शिवाजी महाराज के साथ जो भी लड़े थे वो सब मराठा थे। आप समझिए पहले इतिहास को, आपने इतिहास पढ़ा नहीं है। कहीं बैठी है कभी मेरे साथ तो मैं आपको इतिहास बताता हूँ। जो शिवाजी महाराज के साथ लड़ा था हर कोई मराठा था। फिर वो महादजी शिंदे थे, महादजी शिंदे की कास्ट क्या थी, होलकर की कास्ट क्या थी, धार के पवार की कास्ट क्या थी, तारूजी मालूसी की कास्ट क्या थी? आपकी कास्ट में जाओगे आप? ऐसा हर एक की कास्ट में जाओगे? नहीं, गलत है ये। इस तरह का इतिहास आप मत लाइए, इस तरह का कि तुकोजी होलकर धनगर समाज के थे। सबसे बड़ी धनी कौन थी? धनगर का मतलब क्या था? धन का आदर। पहले कोई करेंसी नहीं थी, तो जिसके पास भेड़ बकरियां और सब होता था वो सबसे बड़ा धनी था। ये धनगर समाज की व्याख्या है, ये डेफिनेशन है। मतलब है, सुनिए सर, मुझे लगता है धनगर का मतलब धनाचे आगर। धनगर का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए बांटो मत, इस तरह से बांटो मत। जी दुरुस्त बात है, we agree with you, but what Hemant Kamble Sahab has said, what the MNS has said, really echoes what Jawaharlal Nehru used to say. Rightfully speaking, the Congress should be supporting the MNS here. That's my opinion. Gentlemen, thank you very much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का. I hope better sense prevails everywhere and we all progress properly, not in the way we are doing right now. Right now we are not progressing. Hemant Kamble Sahab, thank you very much, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Sudeep Dhone Sahab, thank you very much, sir. God bless you. Great pleasure as always having you on the show. Thank you. Thank you. Jai Hind, Jai Hind, Jai Maharashtra. Really and truly lovely discussion. Very, very good. I wish Ganesh Khankar Sahab should have stayed for a slightly longer time. Yes. But then at 8 o'clock he had to go. He still stayed on till about 8:13, 8:14. Yes. So which was very nice of him. But all the same, Pradeep ji, the fact remains that as far as CBSE is concerned, one nation, one syllabus, I think is very, very silly. You need to have proper local syllabi for everybody. Local subjects,
local history, local issues, local social problems, etc., have to form part of the school curriculum. You can't have a straitjacket for everything. There cannot be a one-stop solution for everybody. It can't. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी डाइवर्सिटी है सर. उस डाइवर्सिटी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. That's what I think. In any event, that's The that Congress is a long believes that discussion. Congress believes that they want to centralize everything and saffronize the entire history. I don't think the suspicion is not well founded. It is at the end of the day. But the Congress also, as Hemant Kamble said, went the other way. Look at the NCERT books. I mean, come on. It's only a Mughal- joke. Mughal history. It's a joke. Sir, not just Mughal history, pre-Mughal history also. The Delhi Sultanate, the slave kings, हर एक के बारे में आप पढ़ सकते हो वहां पे. इल्तुतमिश के बारे में, रजिया के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बलबन के बारे में, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हर एक के बारे में है. But there is nothing about what was India like before the Muslim invasion, before Muhammad bin Qasim's coming over here. It is all dealt with broad strokes of a brush. सर गुप्ता, ये बात हमारी और आपकी ना जाने कितनी मर्तबा हो चुकी है. मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के कितने किंग्स हुए, चालुक्य एम्पायर, चोला एम्पायर, उनके कितने किंग्स हुए, उनके नाम क्या थे, जिन्होंने जाकर के पूरे वियतनाम को, पूरे कंबोडिया को, पूरे इंडोनेशिया को, सिंगापुर को, हर जगह पर जाकर के हमारा कल्चर स्प्रेड किया, कॉलोनाइज किया, सब कुछ किया. उन लोगों के बारे में कुछ नहीं है. चोरा, चेला, पांड्या. That's right. कुछ भी नहीं इनके बारे में. चोरा, चेरा, पांड्या, चालुक्य. That's right. Spread of the entire Southeast Asia. So I have to read all that today in William Dalrymple's The Golden Road. Bilkul. You need a Britisher of Scottish origin to write about what a great thing India was. As he says, there's no such thing as the Silk Route. The Silk Route was an invention of 1932 to 36 by a British historian. The actual empire that ruled everybody and gave everybody first the numerals 0 to 9, which we are using right now. These are Indian numerals. Algebra, trigonometry, astronomy, mensuration, all of this came from India. You needed somebody like William Dalrymple to put it all together in a book and then spread it all over the place. And Greece to India, Seleucus and Chandragupta Maurya, the entire route. That's right. The commerce route from there, and that was just a Silk Road was just an extension. The real trade route was this India route coming right up to Kerala. I mean, so why weren't we taught all that? The Chinese Silk Route is a myth. It wasn't there, Pradeep ji. That's the whole point. My point is, why don't these guys start by telling the truth? Now, telling the truth about what India really is not saffronization. It's the truth. It's history. And we should be proud of our history. For example, till today, I was looking at the NCERT books. Raja Lalitaditya के बारे में कुछ नहीं है. Raja Lalitaditya was a great king of Kashmir who conquered areas right up to China on one side and right up to Syria on the other side. Nobody taught me about that in school. How could you miss that? You taught me about the minor kings of the slave dynasty, but you forgot all about that. Why? Because he was a non-Muslim. You don't do that. This is terrible. In any event, don't get me started off on this. I think I'll be here all night. Now, well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. If you like the channel, please do subscribe to the channel. वो घंटी भी बज गई है साहब. Please do subscribe. और The fastest growing channel of the nation now. Wonderful, absolutely wonderful. Or do send in your comments and keep watching Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद.